کلام دیا ہے وہ ہے 32 کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 16ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک سب کے لیے موقع ہے، اور میں بھائی فرینڈ سے کہوں گا تو اس کو نہیں کرے، بائبل نہیں لے لو، یہ چشمہ 32 کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 16 سے 18 دیکھیں گے متی اسکول کی انجیل 2 باب اس کی 16 سے لے کر 18 تک۔ جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی، نہایت غصے ہوا اور آدمی دیش کا بیت لحم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر کے سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے۔ اس وقت کے حساب سے اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی۔ اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو یرمیا نبی کی ماں کو کہی گئی تھی کہ راما میں آواز سنائی دی، رونا اور بڑا ماتم، راحل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی اس لیے کہ وہ نہیں ہے۔ خدا ان کے پاک نام کو پڑھے، سمجھے، سنے جانے کا آمین۔ میرے عزیزو، رات کو جب میں آ رہا تھا کلینک سے تو خدا نے یہ حوالہ دیا کہ جو خدا بتاتا ہے اسی کے مطابق پھر ہم سنڈے کو کلام سناتے ہیں خدا کی رہنمائی میں۔ اس کا پاک روح ہمیں سمجھاتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، کیونکہ وہی ہمارا استاد ہے، اور ہم شکر گزار ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ موقع بخشا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی شکر گزاری کریں، اس کی پرستش کریں اور اس کی آواز کو سنیں۔ میرے عزیزو، خدا کہتا ہے کہ میری آج اگر تو میری آواز سنے تو کیا نہ کرنا، اپنے دلوں کو سخت نہ کرنا، اپنے دلوں کو سخت نہ کرنا۔ آج اگر تو میری آواز سنے تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرنا۔ آج کا جو حوالہ ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے ہیرودیس۔ ہیرودیس جو ہے، جب اس کو پتہ چلا کہ اس کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ کوئی نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، اس کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ کوئی انسان اس دنیا میں آیا ہے، کیا فکر ہے اسے؟ اپنے تخت پہ جانے۔ اس کو اس بات کی فکر ہے کہ مجوسیوں نے کہا تھا کہ ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے، اور وہ کن کا بادشاہ ہے؟ یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے۔ جب یہ اس نے الفاظ سنے تو یہاں پر آ کر اس کو شاید جیسے بندہ ایک سختے میں آ جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، جب کسی کا تخت چھن جاتا ہے، جب اس کی بادشاہی خطرے میں پڑتی ہے تو وہ ضرور اپنے ہاتھ کو مارتا ہے، اور جو آج خدا نے ہمیں کلام دیا ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ خدا نے ہمیں بتایا کہ یہ آج ہی مسیحوں پر یہ مشکلات نہیں ہے، یہ تو یسوع کی پیدائش جب ہوئی ہے تب سے ہی پریشانیاں شروع ہو گئی تھی۔ یسوع مسیح جب پیدا ہوئے تو ہیرودیس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا 2 سال یا اس سے چھوٹے بچوں کو کیا کر دو۔ یسوع مسیح ابھی پیدا ہوئے ہیں، کچھ دنوں کے ہوں گے، کچھ مہینوں کے ہوں گے، لیکن ہیرودیس نے آرڈر کر دیا کہ اس کو کیا کر دو، 2 سے نیچے، یعنی کہ اگر وہ بچہ 2 سال کا بھی ہوگا تو قتل ہو جائے گا۔
वो बादशाह नहीं बनेगा। लेकिन क्या खुदा ने ऐसा उसको करने दिया? नहीं। खुदा ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई दे के कहा कि तू इस बच्चे को और उसकी मां को लेकर कहां चला जा? मिस्र में भाग जा, और जब तक मैं ना कहूं तू वहीं रह। मेरे जीतो, आज हम कलाम में से देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब अपनी ज़मीनी खिदमत का आगाज़ किया तो कितनी मुसीबतें, कितनी परेशानियां का फेस करना पड़ा। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा अगर कोई मेरे नाम से तुझको क्या करेगा? लान तान करेगा, तो वो क्या होगा? मुबारक होगा। अगर कोई बुरी बातें कहता है मसीहत के बारे में, अगर कोई हमें तंग करता है मसीह होने की वजह से, तो हम क्या है? मुबारक है। कलाम बताता है, कलाम में शहादत है। कलाम पढ़ के देखे, कलाम के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई तुम्हें सताए, अगर कोई तुम्हें लान तान करे, अगर मसीही होने की वजह से तुझसे कोई बदसलूकी करे, तो तुम क्या हो? मुबारक हो। हालेलुया। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मसीहत में हम देखते हैं कि जब शागिर्दों ने अपनी खिदमत का आगाज किया तो उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त भी कलीसिया को बहुत सता रहे थे। और अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, शुरू में आ जाएं, तो यीशु मसीह को किस तरीके से उन्होंने सताया, किस तरीके से फंसाया। यीशु मसीह कोई गलत काम तो अपनी ज़मीनी जिंदगी में नहीं करके गए, सब अच्छे काम किए। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ में जो है इल्जाम साबित करो, कोई गलत बात साबित तो करके दिखाओ। किस वजह से तुम मुझसे मेरे साथ इस तरह का सलूक कर रही हो? क्या मैंने किसी को शफा दी इसलिए? क्या मैंने ये कहा कि तेरे गुनाह माफ हुए? क्या इसलिए तुम मेरे खिलाफ हो? क्या मैंने अच्छा नहीं किया? वो कहते थे ये सबत के दिन शफा देता है। भाई शफा ही दे रहा है, वो किसी को गलत काम तो नहीं कर रहा, किसी को मार तो नहीं रहा, बल्कि गुनाहों से आजाद कर रहा है। हालेलुया। और बीमारियों से आजाद कर रहा है। और उसने कहा आए बोझ से दबे हुए लोगों किसके पास आओ? मेरे पास आओ। मेरे अजीजों, जो गुनाह के अंदर दबे हुए लोग थे वो यीशु मसीह के पास आए, और यीशु मसीह ने उनको क्या किया? आजाद कर दिया, शफा दे दी, उन पर रहम कर दिया। और लोग जब ये बातें सुनते थे तो यीशु मसीह के फॉलोअर होते जा रहे थे, यीशु मसीह के फॉलोअर बढ़ते जा रहे थे। अज़ियतें आ रही थी, परेशानियां आ रही थी, लेकिन क्या शागिर्द कम हुए? बढ़ते गए, फॉलोअर बढ़ते गए, यहाँ तक कि जब खुदा यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर एंटर हुए तो क्या हुआ? पूरे इलाके के लोग इकट्ठे हुए थे, क्योंकि वहां ईद फसह हो रही थी। और ईद फसह में जो पूरे एरिया के लोग आते थे, मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आते थे, और ये झोंपड़ियों की ईद होती है, खैमों की ईद होती है, और ये हर साल होती है, इसलिए कि खुदा ने ये हुक्म दिया हुआ था कि ये करना है। क्यों? क्योंकि बच्चे पूछेंगे कि ये क्या है, तो जब बच्चे पूछेंगे तो वालिदैन बताएंगे कि खुदा ने हमें इस तरीके से मिस्र से निकाला और हम खैमों में रहते थे। और उस यादगारी में क्या होता था? हर साल ईद फसह ये ईद मनाई जाती है, और ईद में लिखा बहुत से मुल्कों से लोग इकट्ठे हुए थे। और जब यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर आए तो लिखा है इतने लोग वहां इकट्ठे हो गए, इतने लोग इकट्ठे हो गए। इसमें दो बातें थी, यीशु मसीह को देखने और फिर लाजर को देखने।
میرے عزیزوں اگر ہم کلام کا مطالعہ کریں تو اس وقت یسوع مسیح کو قتل بھی کرنا چاہتے تھے یہ لوگ اور لازر کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے. یوحنا کی انجیل پڑھے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ لازر کو بھی ڈھونڈ رہے تھے کہ دونوں کو ہم کیا کر دیں, قتل کر دیں, کیونکہ جب لازر 4 دن کا مردہ زندہ ہوا تو صرف یروشلم کے اندر ہی نہیں, لکھا ہے گردونوا میں بھی ہلچل مچ گئی. گردونوا میں بھی لوگ یسوع کے پیروکار ہونا شروع ہو گئے, ان کے شاگرد بننا شروع ہو گئے, اس کے فالوور ہونا شروع ہو گئے, ایمان لے کے آنا شروع ہو گئے. یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ ماننا شروع کر دیا انہوں نے. تو جب یہ سب کچھ دیکھا تو کہتے ہیں کہ ہم کرتے کیا ہیں اور ہوتا کیا ہے. کلام کے اندر لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہماری مجلس کے لوگ جو ہے وہ بھی یسوع کے کیا ہو رہے ہیں, پیروکار ہو رہے ہیں, فالوور بن رہے ہیں. ہم کیا کریں؟ اور وہاں ہوشیانہ کے نعرے لگ رہے تھے اور یہودی کہتے ہیں ان کو چپ کراؤ. لیکن یسوع مسیح نے کہا اگر یہ چپ ہو گئے تو کون پکار اٹھیں گے؟ پتھر چلا اٹھیں گے. اگر یہ خاموش ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے. میرے عزیزوں یسوع مسیح کے ساتھ کیا ہوا؟ اگر ہم آج اس وقت دیکھتے ہیں تو اس سے پیچھے بھی ہمیں نظر دوڑانا پڑے گی کہ ہم جس کو مانتے ہیں, جو ہمارا منجی ہے, جو ہمارا خداوند ہے, اس کے ساتھ کیا ہوا. یہودیوں نے ایک پورا ایک گروہ خدا یسوع مسیح کے پیچھے لگایا ہوا تھا کہ اس میں کوئی ایسی بات ڈھونڈو جس کی وجہ سے ہم اس کو سنسار کر سکے, اس کو مار سکے. تو کیا میرے عزیزوں آج اس دور میں کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ آج بھی ایسے ہو رہا ہے. کسی کو بھٹوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے, کہ بستیاں جلائی جا رہی ہے, چرچوں کو مسمار کیا جا رہا ہے. آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. تو کیا یسوع مسیح گھبرائے تھے؟ نہیں میرے عزیزوں. جب پیلاطس کہتا ہے کہ مجھے تجھ کو چھوڑنے کا بھی اختیار ہے اور مارنے کا, قید میں ڈالنے کا بھی اختیار ہے, تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم نہ کر سکتا اگر تیرے کو اوپر سے یہ اختیار نہ دیا جاتا. میرے عزیزوں آج بھی لوگ ہمیں بادشاہی میں داخل ہونے سے کیا کر رہے ہیں؟ روک رہے ہیں. ابلیس لوگوں کے ذریعے سے کام کر رہا ہے تاکہ وہ ہمیں بادشاہی سے روکے. اور اس وقت یسوع مسیح کو بادشاہی لینے سے روک رہے تھے, لوگوں کا بادشاہ بننے کے لیے روک رہے تھے. اور کیا ہوا تھا؟ ایک گنہگار شخص کو رہائی مل گئی, ایک قاتل شخص کو رہائی مل گئی, اور ایک دنیا کے منجی کو کیا کیا؟ صلیب کا آرڈر دے دیا, موت کا آرڈر دے دیا. کیا یسوع مسیح کے منہ میں کبھی ایسی کوئی بات آئی تھی؟ کبھی ایسی کوئی بات اس کے منہ سے نکلی تھی جس کی وجہ سے اس کو صلیب دی جا رہی تھی؟ ایسی کوئی بات اس نے اپنے منہ سے نہیں نکالی تھی. لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ اس کو وہ موت ملی جس پہ لکھا تھا, جو لکڑی پہ لٹکایا جاتا ہے. میرے عزیزوں وہ لعنتی موت ہوتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور کن کے درمیان رہا؟ گناہگاروں کے درمیان. 2 ڈاکو تھے جن کے درمیان میں اس کو صلیب دی گئی, اور ایسی جگہ صلیب دی گئی جو بالکل راستے میں پڑتا ہے, جو ہر بندہ اس راستے سے آتا ہے تاکہ ہر کوئی دیکھے. خدا کے پلان کو, خدا کے منصوبوں کو, خدا کے پرپس کو کوئی روک نہیں سکتا. ابھی خدا یسوع مسیح نے 40 دن کا فاقہ کیا تھا تو شیطان آ گیا, ابلیس آ گیا,
आजमाने के लिए कि अगर तू खुदा का बेटा है। मेरे अजीजों, जब किसी बात में अगर लग जाता है तो वो क्या हो जाता है? शक डालने लगता है। आज भी हमें अबलीस ने शक में डाला। वो कहता है तेरी तो दुआएं नहीं सुनी जानी, तेनों तो शफाई नहीं मिलनी, तू जिन्हें मर्जी रोजे रख, तू इस मसले जो नहीं निकल सकता। भाई क्यों नहीं निकल सकता? जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे पास आ, मैं तुम्हें आऊंगा, फिर कलाम कहता है कि मैं तेरी फिक्र करता हूं। तो जब एक किताब में पढ़ रहा था, उसमें एक खातून जो है वो बड़ी परेशान है और उसके ऊपर कर्जा बहुत सारा चढ़ गया और वो बहुत बीमार हो गई इस टेंशन के अंदर। लेकिन एक दिन उसने ये हवाला पढ़ा, इस हवाले में से जो ये आयत है ये पढ़ी कि खुदावंद की मर्जी के बगैर एक चिड़िया भी जो है वो नीचे नहीं गिरती। और फिर लिखा है कि उसको तुम्हारी क्या है? फिक्र है। तो जब उसने ये वर्ष पढ़ी, ये आयत पढ़ी, तो उसकी तो आंखें खुल गई। खुदा ने उसको ये जब आयत दी तो उसकी टेंशन जाती रही। उसने कहा अगर खुदा चिड़ियों की इतनी फिक्र करता है तो मैं तो इसकी बनाई हुई मखलूक, मुझे तो खुदा ने अपने हाथों से बनाया। इंसान को खुदा ने कैसे बनाया था? अपने हाथों से बनाया। मेरे अजीजों, उस औरत ने कलाम पर ईमान लिया। इस आयत को उसने अपने दिल में जगह दी और फिर कलाम फलने लगा, कलाम फल लाने लगा। जब मेरे अजीजों, एक बीज जब हम बोते हैं तो वो कितना बड़ा फल लाता है। एक गंदम का दाना जब हम जमीन में बो देते हैं तो वो हम क्योंकि काश्तकार है तो वो कितनी बालें निकालता है? तो बहुत सारी निकालते हैं। 100 के हिसाब से एक दाना फल लेके आता है। खुदा का कलाम जिंदा कलाम है। जब ये हमारे दिल में बोया जाता है तो ये कितना फल लाएगा। लेकिन बशर्ते जब हम दाना बोते हैं गंदम का, तो क्या जमीन को पहले तैयार नहीं करते? क्या पहले उसको पानी दे के फिर उसको हम हल चला के तैयार नहीं करते? क्या जमीन को हम जरखेज नहीं करते? तो जब हम जमीन को जरखेज करते हैं, जब वो दाना बोया जाता है तो फिर वो क्या लाता है? अच्छा फल लाता है। आज का कलाम जब हम सुन रहे हैं, जब हम इसको अपने दिल की जमीन में जगह देंगे तो ये यकीनन फलेगा, ये बहुत सारा फल लाएगा। तो मेरे अजीजों, उस औरत ने इस आयत को अपने दिल में रख लिया और अब यकीन करें, उसने कहा मैं अपनी फिक्रें तुझ पर डालती हूँ, मेरा कर्जा तूने उतारना है। और वो उसका उसने आगे लिखा कि मुझे पता ही नहीं चला और मेरा कर्जा क्या हो गया? उतर गया। तो मेरे अजीजों, आज हम सीख रहे हैं कि मसीह के साथ कितना जुल्म हुआ, कितने दुख पहुंचाए उन्होंने। खूनियों के बीच में उसको क्या किया? मसलूब किया। और आगे हम देखते हैं कि शागिर्दों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। स्तिफनस को संसार किया और बहुत से शागिर्द जो है वो कत्ल हुए। जब पतरस को सलीब देने लगे तो उसने कहा कि मुझे कैसे सलीब दो? उल्टी सलीब दो। मतलब ये है कि मसीहत में जब हम आते हैं तो मुश्किलात तो हैं, इस दुनिया को हमने फेस करना है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह में तो कुछ बुराई नहीं पाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद उसको क्या किया गया? संसार किया। आज भी मेरे अजीजों, लोग क्या कर रहे हैं? आज भी लोग
मसीहत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये इतने खुशहाल क्यों हैं, इनके जो क्रिश्चियन मुल्क हैं वो इतने खुशहाल क्यों हैं, वो किसी से कर्ज क्यों नहीं लेते? वो इसलिए कर्ज नहीं लेते कि कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि तू कर्ज लेगा नहीं बल्कि क्या करेगा? देगा। जो खुदा के फॉलोवर बन जाते हैं वो कर्ज लेते नहीं है बल्कि कर्ज देते हैं, बशर्ते कि हम कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को चलाएं। लोग कहते हैं बाहर के लोग जो है ये इनकी आदत कितनी अच्छी है, लेकिन वो बाइबल के मुताबिक चलते हैं, जो कुछ इसमें लिखा है उसके मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं। जब हम कलाम के मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं तो खुदा हमारी रहनुमाई करता है। जब हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो खुदा हमें सपोर्ट करता है। लेकिन जब हम लेटे रहेंगे, सोए रहेंगे और सोए रहने से हम कहेंगे कि हम तरक्की कर जाए, हम बहुत बड़े ओहदे पे चले जाए, कैसे चले जाए? भाई आज भी लोग कहते हैं कि हमारे पास पावर आ जाए, आज भी लोग कहते हैं कि हम दुआ करें और बीमार अच्छे हो जाए। यीशु मसीह ने तो कहा था कि मैं ये इख्तियार तुझे देता हूँ, जो इख्तियार मेरे पास है मैं उसे इख्तियार तो है हमारे पास, लेकिन क्या हम वैसे कर रहे हैं जैसे हमें सिखाया गया? यीशु मसीह के पास कुल इख्तियार था, जमीन का भी इख्तियार था और लेकिन वो सारी रात दुआ करते थे, सारा दिन मनादी करते थे और सारी रात क्या करते थे? दुआ में गुजारते। तो हमें तो नींद ही बड़ी आती है, तो जब इतनी नींद आएगी तो कैसे तरक्की होगी, कैसे हम रूहानी तौर पर तरक्की करेंगे और कैसे हम दुनियावी तौर पर तरक्की करेंगे? इस तरक्की का राज क्या है? इस तरक्की का राज है कि हम अपने आप को मारें। जब तक हम तकलीफ में नहीं जाएंगे, तकलीफ का मतलब है कि हम जागे, जो स्टूडेंट है वो पढ़े, जो कारोबारी शख्सियत है वो अपने हिसाब से उस काम पर तवज्जो दें, जो ड्यूटी कर रहे हैं लोग वो ईमानदारी के साथ ड्यूटी करें। अब होता तो ये है कि 8 घंटे की ड्यूटी है और लोग कहते हैं कि हम 2-4 घंटे हम ऐसे ही ज़ाया कर दें, बैठ के गुजार दें। वो कहते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, हम बैठ कर जो है ना वो तनख्वाह लेंगे। तो क्या ऐसी तनख्वाह में बरकत होगी? अपना काम कैसे करो? ईमानदारी के साथ। और कलाम में तो लिखा है कि पूरे दिल के जी के साथ, और ये जानकर कि क्या कर रहे हो? आदमियों के लिए नहीं, आदमियों के लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए कर रहे हैं। कितने खूबसूरत बात। तो जब हमारे दिल में बेईमानी होगी, टाइम चुराने की, खुदा का वक्त चुराने की, तो कैसे हम तरक्की कर सकते? एक आदम को बहुत सारी नेमत मिली हुई है, वो ऐसे तो नहीं मिल गई कि बंदा सोया रहे और नेमत मिल गई, ऐसे तो नहीं होता। खुदा के साथ रफाकत रखने से, नहीं कितने कितने घंटे उसने रात को खुदा के साथ रफाकत रखी, फिर खुदा ने उसको देखा होगा। वो भाई खुदा तो आजमाता है। कितने साल इब्राहिम खुदा के साथ चलता रहा, और जब उसके बेटे की कुर्बानी की बात आई, जब उसने छुरी जो है वो अपने बेटे पे चलाने के लिए आगे बढ़ा, तो आवाज आई कि अपने हाथ को, अब मैं जान गया कि तू मुझसे। कितने साल, 25 साल से ज्यादा अरसा
वो खुदा के साथ चलता रहा, अपने नातेदारों को छोड़ दिया, अपने घरों को छोड़ दिया, अपने वालिदैन को छोड़ दिया, अपने जो जितने भी थे उनके खानदान के लोग छोड़ दिए, अकेला और एक साथ उसका भतीजा अपने घर से निकल आए। लेकिन जब बेटा दे दिया खुदा ने, तो कहा कि जिससे तू ज्यादा मोहब्बत करता है वो मेरे लिए कुर्बान कर दे। और बेटे से बढ़कर कोई है चीज? और खुदा ने क्या किया, उसने क्या किया, इब्राहिम ने अपने बेटे पर जब छुरी लगाने की कोशिश की तो आवाज आई कि अब मैं जान गया कि तू मुझसे, वजह क्या थी? भाई वफादारी से तो वो शुरू से चल रहा है, लेकिन वजह क्या थी? वजह ये थी कि खुदा ने ये देखा कि ये इतने सालों के बाद इसको बेटा मिला है, इसने इसका भी दहेज नहीं किया, लेकिन वो ईमान रखता था कि अगर वो मुझे बुढ़ापे में दे सकता है तो मुझे बाद में भी दे सकेगा। उसको ये तो ईमान है ना उसका। और फिर वो कलाम में लिखा है वो पत्थरों से औलाद करेगा। कहाँ से? पत्थरों से भी, क्योंकि उसने तो कहना है और हो जाना है। उसने कहा दिन हो जा, क्या दिन नहीं हुआ? उसने कहा मूसा अपनी लाठी समंदर में लगा, तो क्या वो दो हिस्से ना हो गए? यीशु मसीह की कुर्बानी जो है, खुदा ने भी अपने बेटे को, जिसको वो बड़ा अजीज रखता था, नस्ल इंसानी के लिए क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया। क्योंकि अगर हम यूहन्ना की इंजील में पढ़े तो वहां लिखा है इब्तिदा में कलाम था। गौर करना है, इब्तिदा में और कलाम खुदा के और कलाम ही इब्तिदा में कलाम खुदा के साथ था। मतलब ये कलमा है ना, तो खुदा के साथ खुदा का बेटा मौजूद था। जिस्म देने के लिए मरियम को इस्तेमाल किया, वक़्त सा मरियम को इस्तेमाल किया। तो मेरे अजीजों, खुदा कुछ भी कर सकता है, जो उसका प्लान होता है उसको वो पूरा करता है। क्योंकि नस्ल इंसानी के लिए कोई भी ऐसा तरीकाकार नहीं था, लेकिन खुदा ने ये सब कुछ किया। तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि शागिर्दों के साथ भी बहुत नाइंसाफियाँ हुई, बहुत से लोगों ने उनको मारा पीटा। जब मसीहत हल्ले बोलने लगी, जब लोग मसीहत में आना शुरू हुए, तो फिर उनको क्या किया? बड़ी अजियतें दी गई, और इतनी अजियतें दी गई आज तो कुछ भी नहीं है। लोग गारों के अंदर रहते थे। अगर हम हिस्ट्री पढ़े तो उसमें लिखा है कि उनके रंग जो थे लोगों के, वो पीले पड़ गए थे, क्योंकि सालों साल गारों के अंदर वो रहते थे, जहां ना धूप पहुंचती थी, और वहां वो रहकर इबादत करते थे। हालेलुया। आज अगर हम मसीहत को देख रहे हैं तो इसके पीछे बहुत कुर्बानियां हैं, बहुत अजियतें हैं। लोगों को कहा गया कि अपने बच्चों को, हम आपके बच्चों को मार देंगे, आपकी बेटियों को हम जो है वो मार देंगे, बेहुर्मत कर देंगे, अगर मसीह का नाम लेना तुम लोगों ने ना छोड़ा। तो क्या उन्होंने ऐसा किया था? उन्होंने कहा आप बच्चों को मार दो, हमारे घरों को जला दो, लेकिन हम मसीह से जुदा नहीं हो सकते, हम मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं हो सकते। कलाम में लिखा है, क्या तंगी मसीह की मोहब्बत से हमें दूर कर सकती है? क्या मुसीबत खुदा की मोहब्बत से हमें दूर कर सकती है? क्या नंगापन हमें खुदा की मोहब्बत से दूर कर सकता है? नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, आगे हम इसको खत्म करेंगे, हम देखेंगे कि पौलुस रसूल के साथ क्या हुआ।
पौलुस रसूल जब खिदमत कर रहा था तो मेरे अजीजों इसको भी बहुत सारे कोड़े लगे, बहुत सारी अजियतें दी गई, और एक जगह तो हम पढ़ते हैं कि उसको बिल्कुल अदमुआ का मतलब होता है कि जो बिल्कुल मरने के करीब है, वहां तक भी नौबत पहुंच गई। बहुत सारी अजियतें जो है वो सहना पड़ा। और ये जब से मसीह आए और मसीहत फैली, तब से ही मसीहत के खिलाफ प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, तब से ही मसीहत को कुचलने की कोशिश की जा रही है, तब से ही फतवे लग रहे हैं। आज को पहली दफा, उस वक्त भी फतवे लगते थे। यीशु मसीह पर लगा मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह पर फतवा लगा आज, और देखिए वो भी वीक पॉइंट ढूंढ रहे थे। यीशु मसीह के पास अगर 7, 10, 20 हजार लोग थे तो उसमें 5000 तो मुखालफीन थे, जो सिर्फ इसलिए थे कि कोई गलत बात पकड़े और हम क्या करें, इसको संसार कर दें, उसको मारने के लिए प्लान बनाते थे। आज भी मेरे अजीजों, मसीहत को नुकसान पहुंचाने के लिए, मसीही लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनके घरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनके माल को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लान बनाए जाते हैं, और प्लान के बगैर नहीं होता ये सब कुछ। इतने बड़े पैमानों पर जो ये होता है, ये प्लान से होता है। लेकिन मसीहत ना उस वक्त कमजोर पड़ी थी, ना मसीहत आज कमजोर पड़ेगी, और मसीहत बढ़ती जाएगी। वजह क्या है? वजह यह है कि उसने कहा, मैं कभी तुझसे दस्तबरदार नहीं होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। और एक बहुत बड़ा वादा यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ। जब वो हमारे साथ है तो क्या हमें तंगी, मुश्किलात, टेंशनें, लोगों की हमें कुछ परवाह है? हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो हमारे साथ है। अगर कोई हमें दुख देता है, हमारी अमलाक को नुकसान पहुंचाता है, तो खुदा हमें दुगना देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। हमें किसी बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए। जितने भी वाक़या हुए हैं वो सब हम देखते हैं कि खुदा ने डबल ट्रिपल उनको जो है वो बरकतों से नवाजा। शांति नगर ऐसे जलाया था कि ये जो गार्डन है ये भी पिघल के नीचे आ गए, पता नहीं कौन सा केमिकल फेंका, और वही केमिकल जड़ावाला में इस्तेमाल किया। पंखे पिघल गए, गार्डन पिघल गए, लेकिन मसीह की मोहब्बत से कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। खुदा ने शांति नगर के अंदर जाके देखे, उनके रोड जो है वो शहरों के रोड से भी ज्यादा खूबसूरत। वहां के घर लोगों अगर देखें तो लोगों के घर ऐसे शहरों में नहीं है, जैसे वहां के घर खुदा ने उनको दोबारा से बहाल कर दिया, और डबल खुदा ने उनको ब्लेस किया। और इसी तरह हम ईमान रखते हैं कि जहां जहां भी ये वाक़यात हुए हैं, खुदा ने उन्हें डबल बरकत दी है, और जो हालिया हुआ है उसमें भी हम ईमान रखते हैं कि खुदा उनको डबल से भी ज़्यादा बरकत देगा, और दोबारा से वो अपनी जगह पर बहाल हो जाए। मसीहत मिटाने से मिट नहीं सकती। मसीह की मोहब्बत हमारे दिलों से जा नहीं सकती। मेरे अज़ीज़ों, हम सब खुदा के कलाम को फॉलो करें और खुदा के कलाम के मुताबिक चलें। आज मेरे अज़ीज़ों, जो भी इस मैसेज को सुने यूट्यूब पर या फेसबुक पर, वो मैं ईमान रखता हूँ कि वो ढेरों बरकत पाएगा, और खुदा उसके घराने को और उसको जो है वो खूब बरकतों से नवाजेगा।
बशर्ते कि हम पूरे ईमान के साथ कलाम को अपनी ज़िंदगी में काम करें। आज के कलाम के वसीला से खुदा हम सबको कसरत से